So let us quickly revise a little bit of what we have done in the last session. तो पिछले lecture में we started off with a new chapter, electromagnetic waves and communication system. उसमें हमने electromagnetic wave के कुछ basics देखे थे. What is electromagnetic wave? And I'm not going to go again into what is electromagnetic wave. तो आपको पता है electromagnetic wave consists of oscillating electric and magnetic fields. Electric field vibrations and magnetic field vibrations are perpendicular to each other. They are also perpendicular to direction of propagation. And then we saw some characteristics of electromagnetic waves, properties basically. So we'll go through these properties once again. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी था, जैसे मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. और आपको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स. इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. And in case of longitudinal wave, vibrations are parallel to the direction of propagation. यहाँ पे हमको पक्का पता है that these are transverse waves. Then second property अगर आपको याद होगा, क्योंकि हमने अभी भी बोला कि E bar और B bar they are perpendicular to each other and the direction of propagation is perpendicular to both E bar and B bar. और आपको पता है फ्रॉम वेक्टर्स E bar क्रॉस B bar इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ E bar एंड B bar. मतलब E bar क्रॉस B bar गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव. देन इफ यू रिमेंबर कल के लेक्चर में ही हमने देखा था दैट E bar एंड B bar बोथ वेरी एज साइन वेव्स. तो E bar एंड B bar दे आर साइनोसॉइडल इन नेचर, सो दे आर साइन वेव्स बेसिकली. Then ये भी हमने देखा था how electromagnetic waves are produced. They are produced by accelerated charge. तो इनको याद नहीं उनके लिए, तो हमारे पास अगर एक oscillating charge है, oscillating charge मतलब accelerated charge होता है. Oscillating charge produces oscillating electric field, which in turn produces oscillating magnetic fields. So this is what you need to know. Charge, if it is oscillating, so electric field is also oscillating, and oscillating electric field produces oscillating magnetic field. Then हमने देखा electromagnetic waves can travel through free space मतलब vacuum as well as through solids, liquids and gases. और हमने ये भी देखा in free space the speed of EM wave is given by 1 upon under root of mu 0 into epsilon 0, where mu 0 अगर आपको याद होगा is permeability of free space, epsilon 0 was permittivity of free space, और उसके वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखे हैं. And when you substitute these values, you get 3 into 10 power 8 meter per second. ये हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल भी होगा. We will find out speed of light by using values of mu 0 and epsilon 0. Then ये तो हो गया वैक्यूम की बात. बट इन अ गिवन मीडियम, अगर हमारे पास वैक्यूम नहीं है बट सम अदर मीडियम, देन द स्पीड ऑफ लाइट आई मीन EM वेव इन दैट मीडियम इज गिवन बाय 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू इनटू एप्सिलॉन, वेयर म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. गुड. तो हमने कल इस पॉइंट तक कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे. नाउ मूविंग अहेड with next characteristics. EM waves, electromagnetic waves, obey principle of superposition. Principle of superposition. अब ये superposition का मतलब क्या है? अगर आपको एग्जाम में पूछा write down characteristics of EM wave, सिर्फ इतना लिखना है sufficient, बट आपको पता होना चाहिए what is superposition. 12th में पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. तो सुपरपोजिशन मतलब सुपर इम्पोजिशन, एक के ऊपर दूसरे वेव को इम्पोज करना, वन वेव ओवरलैपिंग विथ अनदर. तो लेट्स लुक इनटू डिटेल ऑफ इट. फॉर एग्जांपल
Let us take two waves which are traveling in a given direction. हमारे पास दो waves है which are traveling in a given direction. ये पहला wave हो गया and imagine इसका amplitude जो है वो है A1 और few words are really important. So superposition होने के लिए you should know both the waves should reach at a point simultaneously. एक साथ एक ही पॉइंट पे जब दो waves पहुंचेंगे तो जो कुछ होगा उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन. बेसिकली यू नो हमने पहले भी मेंशन किया है साउंड चैप्टर में कि वेव मतलब क्या, वेव कैरीज एनर्जी. तो इस वेव के पास एनर्जी है, हमारे पास दूसरा वेव है उसके पास भी एनर्जी है. तो ये दोनों वेव्स एक साथ एक ही पॉइंट पे पहुंच गए. तो व्हाट विल हैपन इज, और ये जो दूसरा वेव है इसका एम्पलीट्यूड मान लो A2, दिस इज A2. तो इन सच केसेस जब crest of one wave is overlapping with crest of another, trough of one wave overlapping with trough of another, in this case इन दोनों के दोनों का एम्पलीट्यूड ऊपर की डायरेक्शन में, तो इसमें होगा एम्पलीट्यूड्स का वेक्टर एडिशन और एक नया वेव बनेगा जिसका एम्पलीट्यूड इससे भी ज्यादा होगा, राइट. तो एज यू कैन सी कि दो वेव्स का एडिशन होने के बाद एक नया वेव बना जिसका एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का एडिशन है. इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि कंस्ट्रक्ट हुआ, कुछ बना ना, तो कंस्ट्रक्टिव, राइट. देन ऐसा भी हो सकता था, यू मे हैव अ सिचुएशन वेयर crest of one wave overlaps with trough of another. दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, दोनों का एम्पलीट्यूड का डायरेक्शन भी सेम नहीं है क्योंकि एम्पलीट्यूड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब इस केस में रिजल्टेंट जो वेव बनेगा, दोनों का एडिशन होने के बाद जो वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड कम होगा क्योंकि A1 माइनस A2 होगा इस केस में, एंड यू विल गेट सच अ वेव. तो यहां पे इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब व्हेन टू और मोर वेव्स रीच एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, इफ crest of one wave overlaps with crest of another, then there is addition of amplitude, which means there is addition of energies, so that point will appear bright. क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम अगर विजिबल लाइट की बात करते हैं तो दिखता है ना हमको, so it will appear bright. If crest of one wave overlaps with trough of another, then there is cancellation या फिर subtraction of amplitude. कैंसलेशन कब होगा? कैंसलेशन तब होगा जब exactly equal amplitudes हो but in opposite direction. Then in that case nothing will be left out. A1 minus A2 is 0. इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अगर आपको एक स्टेटमेंट में डिफाइन करना होगा तो व्हाट यू कैन से इज व्हेन टू और मोर वेव्स रीच एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, देन द डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट इज द वेक्टर एडिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑल द वेव्स टुगेदर. क्योंकि पहले वेव ने डिस्प्लेसमेंट किया, फिर दूसरे ने भी डिस्प्लेसमेंट किया. अगर दोनों का क्रेस्ट ओवरलैप हो रहा होगा तो पहले का डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरे का डिस्प्लेसमेंट, यू गेट अ बिगर एम्पलीट्यूड, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अगर एक ने उसको ऊपर डिस्प्लेस किया लेकिन दूसरे पहले वेव और दूसरे वेव का ट्रफ मैच हो रहा था, क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो दूसरे वेव ने उसको नीचे लाया, मतलब यहाँ पे हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड. तो इसलिए मैंने बोला वेक्टर एडिशन, क्योंकि वेक्टर एडिशन में एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है. सो सफिशिएंट फॉर द टाइम बीइंग टू नो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब क्या. गुड. देन नेक्स्ट इज, हमको ऑलरेडी पता है, जिनको याद नहीं उनको याद दिला देता हूं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कंपोनेंट्स हैं. एक है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऑसिलेटिंग है. और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, ऑसिलेटिंग है. ऑसिलेटिंग का मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड गोज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम बैक टू 0. ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मैग्नेटिक फील्ड का उसको बोलते हो एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड.
ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको बोलते हो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, सॉरी, एंड दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट टेल्स यू दैट द रेशियो ऑफ amplitude of electric field to that of amplitude of magnetic field at any point is a constant. मतलब basically E0 by B0 is equal to a constant and this constant is equal to speed of light. See, and of course हमको already पता है कि C क्या होता है 1/√of μ0 into epsilon 0. So next property is the ratio of amplitudes of electric field and magnetic field at any point is a constant and this constant is equal to speed of light. कहाँ पे? In vacuum या फिर in free space. Therefore E0 by B0 equal to C, which is equal to 1/μ0 by epsilon 0. तो ये है अगला प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, you see, आपको चीज पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या? अब नॉर्मली अगर हमारे पास दो बल्ब है तो हम बोलते हैं कि ये ज्यादा इंटेंस है, मतलब ज्यादा ब्राइट है। दूसरा हम बोलते हैं कि ये कम इंटेंस है, मतलब ये लेस ब्राइट है, राइट? तो इंटेंसिटी मतलब कितना ज्यादा एनर्जी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यू शुड नो दैट intensity of a wave is directly proportional to square of the amplitude. अब मैंने यहाँ पे इंटेंशनली इंटेंसिटी ऑफ एन EM वेव नहीं लिखा, हम प्रॉपर्टीज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही देख रहे हैं, लेकिन ये इज जनरली ट्रू फॉर एनी वेव, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे वो मैकेनिकल वेव हो, कुछ भी हो। So it is basically true for all the types of wave. So intensity of a wave is directly proportional to square of the amplitude, right? Therefore, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ तो दो एम्पलीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। Similarly, intensity of magnetic field is proportional to amplitude of magnetic field का square. अगर आप ये proportionality sign हटाओगे तो यहाँ पे कुछ constant आते हैं, 1/2 epsilon 0 E0 square, तो 1/2 epsilon 0 is constant। यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे आता है 1/2 μ0 और ऊपर आता है B0 square, right? यहाँ पे epsilon 0/2 is constant, यहाँ पे 1/2 epsilon 0 is a constant। तो ये आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट प्रॉपर्टी, यू सी, वेव, किसी भी टाइप का वेव हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे वो मैकेनिकल वेव हो। जब हम साउंड चैप्टर देख रहे थे तब मैंने आपको चीज बताया था कि वेव इज अ ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर एनर्जी, मतलब इट बेसिकली ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो यहाँ पे भी ये वेव भी वही कर रहा है, नहीं करता तो आई टोल्ड यू यस्टरडे, ना तुम होते ना मैं होता ना फिजिक्स होता, बात ही खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी, राइट? क्यों? क्योंकि सनलाइट कैरीज एनर्जी एंड दैट बेसिकली क्रिएट्स हैबिटेबल एनवायरनमेंट हियर, थोड़ा टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है। तो एनीवेज द क्वेश्चन इज, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एनर्जी कैरी करता है। अब लेकिन इसमें दो कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, तो क्वेश्चन आना चाहिए ऑब्वियसली किसने कितना एनर्जी कैरी किया। So basically here energy is equally divided between electric field and magnetic field. So since, या डायरेक्टली लिखूंगा मैं on the point,
energy of an EM wave is equally divided into electric and magnetic fields. Good. So that is all. इतने properties आपको पता होने चाहिए, and they are really interesting and also simple. So now it is time for us to solve some questions. So calculate the velocity of electromagnetic waves in vacuum. मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमको find करना है. Well, by the way, given parameters में आपको कांस्टेंट्स की वैल्यू दी होती है, मतलब म्यू 0 4 पाई इंटू 10 पावर -7 ऐसा यूनिट्स, या फिर एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10 पावर -11 ऐसा यूनिट्स नॉर्मली दिया होता है. अगर नहीं दिया होगा तो यू कैन आस्क, क्योंकि इवन इन बोर्ड एग्जाम्स यू कैन आस्क फॉर वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स. ओके, देन you are supposed to find out what? आपको find करना है speed of light, right? Good. Then formula अभी हमने देखा, speed of light c is 1 upon under root of mu 0 into epsilon 0. Very good. Then to solve this you just have to substitute values here. mu 0 की वैल्यू कितनी है? 4 pi तो 10 पावर -7 इंटू epsilon 0 कितना है? 8.85 इंटू 10 पावर -11. अब even without the help of calculator you can go very close to the answer. देखो ऐसा है, 8.85 इंटू 4 पहले कर लो. 8.85 इंटू 4 करने से पहले 8 इंटू 4 कर लो, 32. 0.85 इंटू 4 मतलब 0.85 का डबल 0.85 का डबल कितना? 1.7. 1.7 का डबल कितना? 3.4. 3.4 और 32 कितना आ गया? 35.4. मतलब ये और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया आपके पास 35.4. अब इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब इसके लिए भी लुक, ऑलवेज थिंक 35 इंटू 3 कर लो पहले, 105. 35 105. गुड. 0.4 छोड़ दिया था. 0.4 इंटू 3 1.2. 1.2 और 105 106.2. वेरी गुड. अब ये 0.14 है ना? हाँ, गुड. हमें क्या करना था? 35.4 इंटू 3.14 हमने कर लिया. 35.4 इंटू 3 0.14 रह गया. मेक इट 15. क्यों? क्योंकि हमारा काम ज्यादा इजी होगा इससे. अब देखो, अभी रह गया सिर्फ इतना मल्टीप्लाई करना. अब इसका भी एक सिंपल सा ट्रिक है. जब आप किसी भी नंबर को 0.1 से मल्टीप्लाई करते हो, हो गया राइट. अब 0.1 हो गया, 0.15 था तो 0.1 हो गया, तो 0.05 रह गया. 0.05 मतलब इसका आधा 1.57 है ना. 11 का 1 इधर गया, कितना आ गया? ये 13. कितना आ गया? ये 5.31. 1.51. So this is how. कौन सा लॉग बुक, क्या कैलकुलेटर, नथिंग. यू कैन जस्ट डू इट लाइक दिस. कितना था? 111.51. ये 10 पावर -11 -7 -18 रूट के बाहर -9 ऊपर +9. अब I told you yesterday also, what is 10 square? 100. मतलब 100 का रूट होता तो 10 आता. What is 11 square? तो 121 होता तो 11, राइट. 100 के जगह पे 10 क्योंकि रूट 110. 121 होता तो 11 आता. ये बिल्कुल बीच में है. 10.5 रफली, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं. 10.5. तो
इसको करना पड़ेगा 1/10.5, तो यू हैव टू डू दिस। तो हाउ विल यू डू दिस, कैसे आएगा ये? 1/10.5 रफली। नो, 0.what? अभी ये इतना तो अब आपको करना ही है, यू हैव टू डू इट। तो आई विल टेल यू डायरेक्टली व्हाट आई एम गेटिंग, क्योंकि मुझे रेसिप्रोकल निकाल के सब करने के बाद व्हाट आई ऑब्टेन्ड वाज 2.99999 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, in free space an electromagnetic wave of frequency 28 megahertz travels along x direction। पहले क्वेश्चन समझ लो, आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी है 28 मेगाहर्ट्ज। पहले तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट कैसे करते हैं वो समझ लो, फिर फ्रीक्वेंसी होता क्या है वो समझ लो। so this is not v, this is not u, it is nu, not new, it is nu and u, nu। so this nu is normally used to denote frequency, और frequency is 28 कैपिटल m मतलब मेगाहर्ट्ज, मतलब मिलियन 10 पावर 6, स्मॉल m होता तो मिली 10 पावर -3, यहाँ पे क्या है कैपिटल m है, तो 28 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। देन ट्रेवल्स अलोंग x डायरेक्शन, तभी पहले फ्रीक्वेंसी क्या है वो समझ लेते हैं। गोइंग बैक हियर, आप देख रहे हो कि ये ऑसिलेटिंग है, ऑसिलेटिंग मतलब जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मिनिमम, फिर वापस से जीरो। तो एक सेकेंड में कितनी बार ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में, पर सेकेंड 28 मिलियन टाइम्स एक सेकेंड में, सो फास्ट 28 मिलियन, राइट, गुड। देन wave is traveling along x direction, the amplitude of electric field मतलब E0 is equal to 9.6 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स हो सकते हैं, एक है वोल्ट पर मीटर, दूसरा है, अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर इज द सेम थिंग, मतलब ऐसा यूनिट है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के, and its direction is along y-axis. What is the amplitude and direction of magnetic field? मतलब क्या फाइंड करना है, B0, और डायरेक्शन क्या होगा पता लग गया, z एक्सिस, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज x, प्रोपगेशन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है along y, तो बचा कौन सा, तो z इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सिर्फ आपको B0 फाइंड करना है, वो भी इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि अभी अभी just now today itself we have seen ratio of E0 by B0 is C, therefore B0 is E0 by C, so done। This is how you are supposed to solve। B0 is E0 but E0 is 9.6, C is 3 into 10 power 8, 3.2, और 10 पावर 8 ऊपर जाएगा तो -8 होगा, तो B0 is 3.2 into 10 power -8 टेस्ला along z axis। Done। This is how you are supposed to solve this question। Next question, a beam of red light has amplitude 2.5 times the second beam of the same color, मतलब wavelength is same। तो आपको गिवन में क्या बोला है, you have beam of red light, मतलब एक वेव है which has wavelength around 7000 angstrom, क्योंकि red light मतलब around 7000, उसका जो एम्पलीट्यूड है it is 2.5 times of AP, right, क्योंकि उन्होंने बोला है beam of red light has amplitude 2.5 times of second beam। Calculate the ratio of intensities of the two waves। So you are supposed to find out what is the ratio of intensities, मतलब I1 by I2, right, and then
ऑफ कोर्स अभी अभी हमने देखा इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो क्वेश्चन स्टार्ट होके खत्म हो गया यहाँ पे, because I1 by I2 will be equal to A1 by A2 का square, but A1 by A2 is 2.5, तो 2.5 का square is 6.25. Done. So before we go to next question, let us go back to chapter number 8, sound. साउंड में जब हम ट्रांसवर्स वेव, एक्चुअली साउंड इज ऑमलेट वेव, बट उस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट था, दैट इज व्हाई व्हेन वी वर लुकिंग एट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अ लॉन्गिट्यूड, सॉरी फॉर अ ट्रांसवर्स वेव, तो अगर हमारे पास एक वेव है विच इज प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाइब्रेशंस इफ आर दे आर अलोंग वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस भी ले सकते थे, वाई एक्सिस भी ले सकते हो, तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे आप लिखते हो इस मैथमेटिकल वेव का इक्वेशन लिखते हो y इक्वल टू a where a is amplitude sin of kx minus ओमेगा t। अगर यही वेव नेगेटिव x में जा रहा होता तो बीच में आता प्लस, तो ये पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि k इसको बोलते हैं वेव नंबर विच इज 2 पाई बाय वेवलेंथ, और आपको पता होना चाहिए ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। इतना अगर आपको पता है तो यू कैन सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 13.5। 13.4 you don't have to solve. Why? Because 13.4 and this one, let us compare. Okay, an EM wave of frequency 50 megahertz in free space and EM wave of frequency 28 megahertz। सिर्फ फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, हमको वैसे फ्रीक्वेंसी यूज ही नहीं आया था क्या कहीं पे फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सिर्फ दिया है हमारे काम का नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला है आगे, ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या बोला था, ट्रेवल्स अलोंग एक्स एक्सिस सेम है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज सेम, and E bar at a point x, मतलब E bar at a point x and at a particular instant of time t is 9.6 j cap। j cap मतलब कौन सा, y axis, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन कौन सा डायरेक्शन में है, यहाँ पे पढ़ो। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 9.6 वोल्ट पर मीटर and its direction is y axis। Find the magnitude and direction of B bar at this point and at that instant. What is amplitude and direction of magnetic field? Same question है, exactly same solution है, तो आपको यही सब वहां पे करना है। तो आंसर क्या आएगा, 3.2 into 10 power minus 8 टेस्ला along z axis। तो हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमने किया है। That is why I told you कि next question is 13.5। For an electromagnetic wave propagating along x direction, the magnetic field oscillates along z direction at a frequency of, so given frequency of 3 into 10 power 10 hertz and has amplitude, किसका amplitude, magnetic field का मतलब क्या दिया है, B0, कितना है 10 पावर माइनस 9 टेस्ला। फाइंड द वेवलेंथ, यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ द वेव लैम्डा, नंबर 2 यू आर सपोज्ड टू फाइंड राइट एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यू अंडरस्टैंड कि मैंने क्यों बताया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y होगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, if this is direction of electric field vibration, जैसे मैंने पहले भी बताया है over here, right, ये था y और ये डायरेक्शन था z, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन अलोंग y है तो E है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे हम ऐसा लिखने वाले हैं इसको
वी आर गोइंग टू राइट इट एज ई सफिक्स वाई, और एम्पलीट्यूड की जगह पे हम लिखने वाले हैं ई जीरो। डन। तो ये पता होना चाहिए that what are you doing, you should know कि you are supposed to find out EY. Then formulas, अगर आपको वेवलेंथ फाइंड करना है तो मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी c by लैम्बडा, तो वेवलेंथ लैम्बडा इज c by फ्रीक्वेंसी। नंबर 2, अभी मैंने बताया EY इक्वल टू E0 साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा t। Good. Then let us first find out what is wavelength. Wavelength, which is c by nu. C कितना 3 into 10 power 8, nu कितना दिया है 3 into 10 power 10, कैंसल कैंसल, ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा -2, तो wavelength is 10 power -2 मीटर। Then EY part 2, EY is E0, but wait a minute, do we know E0? No, you don't know. Then what do you know? E0 by B0 is C, मतलब E0 is C into B0, मतलब यहां लिख देंगे C into B0। साइन ऑफ K, अभी भी बताया था मैंने, what was K? K was 2 pi by wavelength, तो यहां पे लिखोगे साइन ऑफ K मतलब 2 pi by लैम्बडा इंटू x माइनस ओमेगा टी। मैंने बताया था ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू टी, k इज 2 पाई बाय लैम्बडा, ओमेगा इज 2 पाई फ्रीक्वेंसी, तो k 2 पाई बाय लैम्बडा और इंटू x, तो 2 पाई x बाय लैम्बडा, 2 पाई x बाय लैम्बडा, ओमेगा इज 2 पाई नू, तो 2 पाई नू इंटू टी। तो यहां से C is 3 into 10 power 8, B0 10 power minus 9, साइन ऑफ 2 pi 2 pi कॉमन, क्या बचा x by lambda, but what is lambda 10 power minus 2, 2 pi कॉमन आ गया, nu what is nu 3 into 10 power 10 और t, करेक्ट। तो EY इक्वल टू ये 10 पर प्लस 8 और -9 -1, 3 into 10 पर -1 is 0.3 साइन ऑफ, so it is basically 0.3 साइन 2 पाई, ये ऊपर जाएगा तो 100, 10 पर -2 पर जाएगा 10 पर +2, तो 100x -3 into 10 power 10 t, ये मिल गया आपको एक्सप्रेशन फॉर electric field. That's it for today. More in the next session.